हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सबको। और मैं आज हमारे स्टूडियो में आपसे मुलाकात कराता हूँ एक नौजवान डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा, जो कि ऑन्को सर्जन है और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और कैंसर के सर्जन हैं जो फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करते हैं। और इनसे मुलाकात की ख़ास वजह आज ये है कि सारी दुनिया कोविड-19 के उपचार में लगी हुई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई इसकी दवाई निकल आए, किसी तरीके से कोई हल मिल जाए, कोई इसका वैक्सीन निकल आए। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी वो ही है जो उसको फाइट करेगी। तो डॉक्टर साहब एक नया आपके सामने अपना प्रस्ताव लेके आए हैं जो आपको अच्छा लगेगा कि आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसके बारे में 99% लोग हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसका लेवल क्या है, वो कितनी इम्यून सिस्टम के हिसाब से फिट है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आज आपको डॉक्टर मनदीप मल्होत्रा बताएंगे। सो ओवर टू डॉक्टर मनदीप मल्होत्रा। I am basically a head and neck, that is oral cancer, thyroid cancer, or maxillary cancers, breast cancer. So I operate upon those cancers. So I'm a cancer surgeon, dedicatedly operating these cancers. And like few months back, before this COVID actually started, there is a patient group across. It's a huge patient group across the world. पूरे दुनिया में ऐसे पेशेंट हैं जो स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो जब एक हमारे जैसे जब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं या आप कीमोथेरेपी लग चुकी है, ऑपरेशन हो गया है, रेडिएशन उसके बाद भी बट कैंसर वापस आ रहा है, परसिस्ट कर रहा है, तो उन्होंने मिलके दे रिसर्च इनटू ऑफ लेवल ड्रग्स। जो कुछ चीज़ें कहीं कोई ऐसी दवाई है जो काम करी है या कोई ऐसी चीज़ है जो काम करी है, जैसे सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर आप गूगल भी करो तो विटामिन सी का इंजेक्शन, IV विटामिन सी का कैंसर पे यूज़ किया गया है और बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं कि कैंसर कंट्रोल कर लेता है वो हाई डोज ऑफ विटामिन सी हाई डोज ऑफ विटामिन सी। तो वन ऑफ माई पेशेंट, आई डोंट मतलब I have not taken a consent to disclose them, but one of the patients, they are very actively, few of them are doing this, and they are connected to this international group. इसमें जेन मैकलेन करके एक बंदी है, एक लेडी है जिसने बुक भी लिखी है, हाउ आई स्टार्व्ड माई कैंसर। तो उसने अपना कैंसर को किस तरह स्टार्व किया अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करके, मेटाबॉलिक थेरेपी उसको बोलते हैं। एक एबे मिचेल करके, देयर इज अ लेडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज वन ऑफ द concept orientators of this group, and she has shared her whole protocol regarding how she does it. Simple, how she uses curcumin, how she uses haldi, how she uses daru haldi, जो बाबा रामदेव जी बोलते हैं। तो how she uses these drugs and these things to control, and now she's cancer free. So this was a concept which we were anyway exploring this concept, and this is a very cost effective treatment, readily available, and we started using these things for stage 4 cancers. And during that time COVID pandemic came up, and when the COVID pandemic was there, so first of all we started looking at an options to treat patients. Ab every hospital now there is a COVID, and cancer and COVID doesn't run in hand in hand. Cancer मतलब एक कैंसर का पेशेंट है, तो अगर उसको कोविड हो गया तो बेसिकली कैंसर है, उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम है, अगर उसको कोविड हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव दैट पर्सन। रिओडन क्लिनिक इन US, so they basically are one of the pioneers of IV vitamin C therapy for cancer, and then it's there in Google, you can search it also. So they developed the metabolic therapy for COVID, so we started reading that, in which they looked into the aspects of enhancing the immunity through pharmacological and dietary supplements also. And when we started doing that, so we realized that it's really working. I'm using it for my cancer patients, I'm using it for myself, a lot of other people, and definitely the COVID has been controlled. So few things I want to tell. Simple thing, vitamin D. Vitamin D is a very very important vitamin. Why? Very important mineral. That is what vitamin stands for. So vitamin D has two important roles in COVID. When the virus gets into the like you get virus through nose or mouth or eye, so जो म्यूकोजल लाइनिंग है हमारी मुंह की, थ्रोट की, एयरवे की,
उसके ऊपर पेप्टाइड, जैसे दीज आर पेप्टाइड्स विच फाइट द वायरस. पेप्टाइड मतलब मैं बोलूँ तो लेवल में एंटीबॉडीज to fight the virus at the upfront. So vitamin D is very essential for these peptides or antibodies to function. So and also vitamin D is the important hormone which अब जब कोविड होता है किसी को तो होता क्या है कि बॉडी अपना इम्यून रिस्पॉन्स देती है और इम्यून सिस्टम जब वायरस के आगे काम नहीं कर पाता तो ओवरवेलम हो जाता है, मतलब वो और चीज़ें भी ख़राब करने लग जाता है. तो उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम, डायरिया, ये सब होता है और अल्टीमेटली किसी की डेथ होती है. तो इन्फ्लामेशन जिसे हम बोलते हैं. तो विटामिन डी ऑल्सो प्रिवेंट्स आवर इम्यून सिस्टम टू गो बिजर्क एंड कॉजिंग हार्मफुल इन्फ्लामेशन. हमारे मेजॉरिटी लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंट होगा, इंडिया में खास तौर से. हाँ जी उसकी खास वजह सर, खाने की और लिमिटेड सन एक्सपोजर. लिमिटेड सन, मेनली जो है वो सन एक्सपोजर. सो विटामिन डी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए. सो मैं जो आपकी बातों से समझ रहा हूँ वो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो चीज़ें ठीक रखती हैं उन चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि शायद 99% लोग जो हैं इंडिया में, हम सब इंक्लूडिंग मी, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी क्या है. क्योंकि नॉर्मली हम रूटीन टेस्ट अपने जो है ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मली नहीं कराते और कराते हैं तब जब कोई बीमार होता है. सो मुझे लगता है कि हमें सबको एक अपना टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट वो बड़ा ज़रूरी है कराना, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके. हमें तो नहीं मालूम पड़ेगा, डेफिनेटली आप जैसे एक्सपर्ट्स को मालूम पड़ेगा कि उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी किस किस चीज़ों की है. और फिर उन डेफिशिएंसी वाले जो जैसे विटामिन सी है, डी है, जिंक है और भी जैसे जो आप चीज़ें बता रहे हैं अभी या बताएंगे, तो उन चीज़ों को, उनके लेवल्स को ठीक करके आपके इम्यून सिस्टम को ठीक किया जाए और उसी से आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ठीक हो सकता है. उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, हर तरह की रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं. जो स्पेन और इटली में जब लोगों की डेथ हुई बहुत ज़्यादा, व्हेन दे फाउंड दैट इट इज़ मोस्टली एल्डरली पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर विटामिन डी डेफिशिएंट. अच्छा. That is the research and that is the background of the ongoing research that vitamin D. There is a video also, I think it's available in the social media, by a very senior doctor who explains the role of vitamin D in COVID. So my first recommendation for the thing is that majority of us would be deficient in vitamin D. So vitamins or micronutrients, how do they work is they have to be at a very optimum level when you encounter a virus. Like if I am when I get exposed to COVID and if I am deficient in vitamin D, so obviously the antibody response would be less. My inflammations would be berserk, so I would have more severe symptoms. So when I am encountering the COVID, so my levels should be normal. So we should get our vitamin D levels checked. If they are deficient, we should visit our physician and ask the remedy. Basically हमें उसको एग्रेसिवली डाइट से और सप्लीमेंट से ऑप्टिमम लेवल पे लेके आना चाहिए और उसके बाद हमें उस लेवल को मेंटेन रखना चाहिए. नाउ आई वुड कम टू विटामिन सी. मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है विटामिन सी कैसे लेते हैं कि अच्छा एक टैबलेट ले ली या एक दो आमने ले लिए या इस टाइप से. विटामिन सी का 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए. फर्स्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल फॉर इम्यूनिटी, बोथ अडेप्टिव एंड इनेट. इनेट मतलब जो हमारी इनहेरेंट बेसिक इम्यूनिटी है टू फाइट इन्फेक्शन, एंड अडेप्टिव मतलब जो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी जब वो इन्फेक्शन के आगे आएगी. वाइट ब्लड सेल जो हमारा मेन ब्लड सेल है जो वायरस से लड़ेगा, उसके फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए और उसको वायरस तक पहुंचाने के लिए विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तीसरी चीज़, विटामिन सी हमने जब किताबों में भी पढ़ा है, शायद स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्कर्वी जिसे बोलते थे. अब ब्लीडिंग गम्स का मतलब क्या है कि जो हमारा म्यूकोजा है, जो लाइनिंग है टीथ की, टंग की, ओरोफैरिंक्स की, नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो विंड पाइप की जो लाइनिंग है उसको म्यूकोजा बोलते हैं. फॉर दैट लाइनिंग टू बी हेल्दी, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरी लाइनिंग हेल्दी है तो बाई चांस अगर वायरस आ भी रहा है तो it would find it difficult to enter into my whole system. I can stop it there. So that is why it is important for my vitamin C levels to be optimized. Vitamin C has a very small half-life. Half-life मतलब जैसे हमने विटामिन डी लिया, विटामिन ई लिया या के लिया, ये फैट में स्टोर हो जाएगा. तो जैसे आपने हफ्ते में एक बार लिया तो वो मेंटेन रखेगा.
विटामिन सी की एवरेज हाफ लाइफ अराउंड 4 आवर्स होती है, तो आपने लिया 4 घंटे के अंदर इट बेसिकली गेट्स एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, तो किडनी से निकल जाएगा। तो डॉक्टर अनीता कार है, शी इज अ वेरी फेमस nutritional scientist, and there is an ample research which she has published in Google, मतलब people can check also. What she says is कि for a very optimum immune response 70 micromole should be the blood level of my vitamin C when I am encountering the virus. So for 70 micromole I need, for average adult, average 60 kg, if somebody is bigger, so the dose of vitamin C should be at least 2 grams per day. 1 to 2 grams. 2 grams means if I am taking a Selene or a Lim-C or any tablet of vitamin C which is 500 milligrams, I have to take it 4 times a day. अच्छा। If I am taking a 1 gram tablet, I am taking 2 times a day. तो एक नॉर्मल आदमी जो 60 से 80 किलो के बीच का हो, हाँ, उसके लिए जो एटलीस्ट 3 से 4 गोली लेना चाहिए। हाँ, उसको। मतलब 2 ग्राम चाहिए। हाँ, फॉर दैट 70 माइक्रोमोल हाँ, रीच करने के लिए। एक और फॉर्म है जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ज़रूर इससे मैसेज देना चाहूँगा, एक लाइपोसोमल वेरिएंट आता है विटामिन सी का। लाइपोसोमल, उसको हम बोलते हैं लाइपोसोमल विटामिन सी, जो सैशे में आता है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप किसी भी साइट पे देख लीजिए। तो दैट हैज़ अ मोर बायो अवेलेबिलिटी, मतलब वो हमारी जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। तो यू कैन हैव दोज 1 or 2 sachets. आई एम टेकिंग दैट माई सेल्फ। सो मतलब वो गोली से वो ज़्यादा बेटर, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा महंगा है, अगर आपको गोली बेटर लगती है गोली ले लो, बट लाइपोसोमल भी अच्छा है। वो आप कैसे खा सकते हैं? किसी वो पानी में घोल लो, पानी में दूध या में दूध में या जूस में डाल के दे सकते हैं। कोई बंदा जो एल्डरली है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे किसी का डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, HbA1c बहुत ज़्यादा है, 10 पे है, स्मोकर स्पेसिफिकली, और इफ समबडी हैज अ टेंडेंसी फॉर फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, जैसे अनीता कार और उस एक और बंदा है, उसने डिफाइन किया है किसी को साल में 4 से ज़्यादा हो रहे हैं तो बेसिकली ही हैज़ अ मोर टेंडेंसी फॉर गेटिंग कोल्ड्स। सो उनके लिए हम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसके लिए हम 3 से 4 ग्राम तक अगर वो ले पाए तो ठीक है। जब आप इनिशियली थोड़ा सा विटामिन सी लेते हो तो शुगर बढ़ता है, तो वो फिजिशियन के, जब आप इससे ऊपर जाओगे 2 ग्राम के ऊपर, तो आपको अपने फिजिशियन के टच में रह के काम करना है, ओवर द काउंटर मत करिए आप। वुहान में क्या हुआ था, जब विटामिन सी, वुहान वाले डॉक्टर्स विटामिन सी के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, 8 से 14-20 ग्राम का इंजेक्शन। वो इंजेक्शन का उनका फंडा ये है कि उन्होंने ये देखा है कि अगर मैं विटामिन सी का इंजेक्शन, और ये कैंसर से ही लिया गया है, कैंसर में 25 से 50 ग्राम का इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन सी का, जो स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या अर्ली स्टेज पे भी। तो वी हैव सीन दैट कैंसर गेट्स स्लाइटली कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट इम्यून बूस्टिंग एंड ऑक्सीडेटिव and antioxidative potential of vitamin C. So they have extrapolated that data. If stage 4 cancer can be controlled, so why can't? And there is a good data for vitamin C also for respiratory infections. किसी को वेंटिलेटर पे था, ICU में सेटिंग में, तो there is a data and there is a non data also कि कोई कहता है होता है, कोई कहता नहीं होता, बट वुहान में लोगों ने ट्राई किया and what they have found is there is a 30% reduction of patient going bad. That is good enough. अगर मैं, और इसमें हमें देखना होता है कि G6PD, एक सीरम G6PD होता है, वो टेस्ट हम कराते हैं, तो अगर वो G6PD नॉर्मल है तो हम हाई डोज ऑफ IV विटामिन सी दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है जिंक पे। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वुंड हीलिंग के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। मैंने बहुत बार लोगों को देखा जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी आती हैं कि उसने लिख दिया बी कॉम्प्लेक्स के साथ आप जेड खा लो, बी कॉम्प्लेक्स प्लस जिंक। जिंक का जो ऑप्टिमम लेवल है, जब आपको जिसमें वो अच्छा काम करता है, वो 75 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि जब आप बी कॉम्प्लेक्स के साथ जिंक आप ले रहे होते हैं तो उसमें जिंक की वैल्यू कभी कभी 15 मिलीग्राम ही होती है उस फॉर्मुलेशन में। सो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम 75 मिलीग्राम से ऊपर। तो जिंक की टैबलेट्स आती हैं? जिंक की टैबलेट भी आती है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको जिंक कौन से फूड्स में भी है वो भी ले सकता है। तो दिस यू कैन। तो जिंक की टैबलेट की हमें कितनी खानी होती है? आप, जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं बी कॉम्प्लेक्स प्लस जिंक, अगर 15 मिलीग्राम उसमें जिंक है तो मैं 50 मिलीग्राम की जिंक की टैबलेट और खा लेता हूँ। जो हमारी बॉडी का वायरस के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसको हम इंटरफेरॉन और उस सब से करते हैं, तो जिंक उसमें हेल्प करता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो जिंक करता है, वो जो हमारा म्यूकोसिलरी, जैसे जो हमारा म्यूकस है, जो हमारे सिस्टम में ना सिलिया है, जैसे बाल टाइप होते हैं, जो जैसे म्यूकस क्या है, जो
म्यूकोस हमारे उसमें क्या होता है कि जो गंदगी है, वायरस है, उसमें चिपक जाता है और सीलिया उसको वापस फेंकते हैं। तो ये जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है वो जिंक गवर्न करता है। अगर आपका जिंक अच्छा है तो आपको वायरस से लड़ने की सिस्टम ज़्यादा अच्छा मिलेगा और वायरस के साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपरसीड हो जाती है वो कम करता तो है। मैं अगर आम भाषा में समझ रहा हूँ तो हमारी बलगम जो है, हाँ जी, उसको बाहर निकालने में उसको थ्रो करने में जिंक का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। और अब चीज आती है जिंक के बाद सेलेनियम। सेलेनियम इज अनदर इम्पोर्टेंट। ये मैं फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल है, देयर इज अ रिसर्च इसमें भी। उसमें ये देखा गया कि अगर जहाँ सेलेनियम डेफिशिएंट, जो सेलेनियम एनरिच्ड फूड खाते थे जैसे फिश हो गया या कुछ हो गया, या सेलेनियम एनरिच्ड एरियाज के जो लोग हैं वो 5 times दे फेयर्ड बेटर एज कम्पेयर टू सेलेनियम डेफिशिएंट पीपल। This is again a research. So that is why selenium, you can Google it. It's available in fish and other things. You can supplement with your diet. Last जैसे मैं चीज जब हम बात करते हैं वो है एक विटामिन के। हम एक व्हाट्सएप मैसेज आया भी था कि जिसमें ये बताया गया था कि जब इटली में लोगों का ऑटोप्सी हुआ तो बहुत बार ये देखा गया कि जिनकी कोरोना से डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, उसमें उनको ब्लड क्लॉट्स मिले हैं। अच्छा। इट इज मतलब बहुत सारे लोगों ने शायद वो मैसेज पढ़ा होगा। तो विटामिन के एंड नाउ इट्स अ रिसर्च कि कोविड वायरस डज कॉज डिरेंज क्लॉटिंग सिस्टम, जहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिससे डेथ हो सकती है। विटामिन के इज द विटामिन which makes our clotting system healthy. अगर किसी को लिवर डिजीज है, जब किसी का लिवर खराब होता है तो सबसे पहले हम लिवर कैसे देखते हैं कि लिवर खराब है कि नहीं, हम उसका कोगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल देख के देखते हैं कि इसका क्लॉटिंग सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसको हम, और विटामिन के जाके लिवर में स्टोर होता है, तो हम उसके विटामिन के लेवल्स बिल्ड करने के लिए उसको विटामिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका क्लॉटिंग सिस्टम ऑप्टिमम काम करे। तो विटामिन के का रोल यह है कि हमारा सिस्टम ठीक काम करे। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसपे हमारी आयुर्वेदा की, जिसपे हमने रिसर्च नहीं की, बाकियों ने रिसर्च करके हमें बता दिया। हल्दी इज अ वेरी गुड वुंड हीलर, हल्दी इज अ वेरी गुड immune booster, haldi is a very good antiviral. There is a research which was done in South India which they used the nanoparticles of haldi and they found it works on cancer control also. अच्छा. So this is a published research from India. ओरिजिनल ऑर्गेनिक हल्दी की जो मतलब है वो अच्छा काम करेगी, आप उस फॉर्म में ले सकते हैं। हल्दी के सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर आप अभी तो मैंने देखा एक बार नैनो हल्दी के भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है नेट पे। अच्छा, नेट पे हैं। हाँ, तो अश्वगंधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम बहुत टाइम से इस चीज पे ये जानते हैं और शायद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इस चीज को रिकमेंड करती है कि आप अश्वगंधा सप्लीमेंट कर सकते हैं। अश्वगंधा हैज अ गुड इम्यून एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो अवेलेबल, आई एम नॉट, you can procure it in normal herbal form and there are supplements of ashwagandha also available on internet, you can use that. ठीक है. So this is the pharmacological aspect of immune boosting which I am recommending my patients to do it. Also I want to add certain things which my grandmother has told me and everybody's grandmother might have told them. Certain things like black pepper, kali mirch has antiviral properties, काली मिर्च has anti-inflammatory properties, और वो हमारे थ्रोट को ना खासकर खाने के सिस्टम को ठीक रखती है। So basically garlic, काली मिर्च, clove has and neem has a good immune system up properties. Things like ginger, अदरक हम बहुत टाइम से चाय में डाल के पीते हैं, किसी को खांसी होती है, अदरक हैज अ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, तो वो जो इन्फ्लामेशन है ना, जैसे तो खांसी है, उसको कम करती है। पेपरमिंट, हम विक्स में, हॉल्स में बहुत टाइम से, पेपरमिंट सूट्स एंड पेपरमिंट रिलैक्सेस आवर ब्रोंकियल मसल्स। अच्छा, ब्रीदिंग हमारी इजी ब्रीदिंग। तो पेपरमिंट जो हम खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमारे सांस लेने के जो सिस्टम को रिलैक्स करता है। बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो लास्ट 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, विटामिन ए एंड कॉड लिवर ऑयल जिसे बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 ये कॉड लिवर ऑयल के जो कैप्सूल खाते हैं उसमें होता है, आप डाइट से भी कर सकते हो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम, दे एक्चुअली वर्क फॉर आवर इम्यून सिस्टम। और विटामिन ए अगेन हैज अ वेरी, इट स्टेबलाइजेज आवर लाइनिंग, माय स्किन, माय आई, माय ओरल, तो इट प्रोटेक्ट्स द वायरस टू एंटर इनटू माय सिस्टम। तो
प्राइमरली हमें एक बेसिक ब्लड लेवल्स अपने कर लेने चाहिए, हमें अपने एक सीबीसी, अब हमें एक एलएफटी, हमारा लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। अगर हमारा लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है मतलब कोगुलेशन वगैरह हमारी अच्छी है। अगर हमें उस टाइम पता लग जाए कि नहीं मेरा लीवर कुछ खराब है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम है, तो मैं उसको ठीक कर लूँ। ठीक है, मेरा किडनी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है। किसी को शुगर है तो वो अपने शुगर्स को नॉर्मलाइज कर ले, उस पर निगलेक्ट मत करें। तो बेसिकली हम आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर करके हमने एक कंसेप्ट बनाया था जिसमें हम कैंसर में ये अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी का जो रोल है, इफ यू कैन ऑक्यूमेंट दीज रोल्स विद सर्टेन ड्रग्स, तो हमारा एक कंसेप्ट था। उस कंसेप्ट के ऊपर से फिर हमने ये चीज़ हमने अपने पेशेंट्स के लिए की है। हमें कुछ फायदा लगा, मैंने देखा अपने पेशेंट्स को, मैंने कुछ पेशेंट्स को आईवी विटामिन सी भी दिया है, कुछ कैंसर पेशेंट्स को वो तो हमने इसलिए भी दिया था कि कैंसर कंट्रोल भी हो जाए। बट मेरे 3 पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ, एक्चुअली कोविड हुआ, और कैंसर पेशेंट को कोविड हुआ, और हमने विटामिन सी दिया और वी वर एबल टू प्रोटेक्ट, सेव देम फ्रॉम गेटिंग वर्स। This is a preliminary findings. We are trying to write this to ICMR for a research project if they can take it forward. It is a very cheap drug, तो इसलिए मतलब और अवेलेबल है हर जगह। तो ये थोड़ी सी information। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे या किसी वजह से नहीं जा सकते, अब वो अपना टेस्ट कराने कैसे जाएं, तो वो प्रॉब्लम कैसे बिना टेस्ट कराए तो ये हल होगा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब बिना टेस्ट कराए आप किसी को हम HCQ, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर जैसी हाई लेवल की दवाइयाँ नहीं दे सकते। टेस्ट तो ऑब्वियसली आप अपने फिजिशियन के पास जाए, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे आपको टेस्ट कराना है, बट दीज थिंग्स यू कैन एक्चुअली स्टार्ट। सो बेसिकली जो आज जिस टॉपिक पे हमने बात करी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में एक अवेयरनेस जनरेट करना कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं जब आपका ब्लड टेस्ट हो। और वो ब्लड टेस्ट जितनी भी चीज़ें अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं, वो 5-7 चीज़ें जो हैं, उसका एक हम PDF फाइल अपने सोशल मीडिया के साथ में हम उसका एक लिंक भी अटैच कर रहे हैं, आप वो खोल के भी देख सकते हैं। तो वो कराने के बाद आप अपने फिजिशियन को दिखाएं और वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको उसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। तो खाने से भी वो डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। कुछ ऐसे खाने के भी चीज़ें हैं, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं जो आप ले सकते हैं जिनसे वो डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। और ये जो दवाइयां हैं उससे भी पूरा, जो सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि आजकल कोविड बहुत बुरी तरह फैल रहा है, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उसकी जो सप्लीमेंट्स जो दवा के फॉर्म में आते हैं वो लें। बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी टू गो बैड अगर हम उसको मिनिमाइज कर लें किसी भी फॉर्म में, वो सिंपल सा मैसेज है। और इसमें मुझे इन सारी चीज़ों पे जो मैंने अपने पेशेंट्स में दी, क्योंकि देखिए आई एम नॉट प्राइमरली आई एम नॉट अ कोविड फिजिशियन, आई एम अ कैंसर फिजिशियन, बट when I started when my patients who are cancer patients, and then few of them got COVID, and obviously we were worried about them, so we use this and I'm using it for myself, I'm using it for my patients, I'm trying it. So if somebody wants to try it, we'll be sharing the whole data. और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि कोविड आज है, शायद कल नहीं होगा, उसका इलाज कभी ना कभी तो निकलेगा ही निकलेगा। पर अगर बॉडी का आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो आपको और भी दूसरी बीमारियों से बचा सकता है और ठीक रख सकता है। और ये आपकी बॉडी सिस्टम को, जो आपके इम्यून सिस्टम को पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो भी हमने डॉक्टर साहब के साथ शेयर करी। और वो डेफिशिएंसी अगर आपको मालूम पड़ जाती है तो आप अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं। आप खुद अगर अवेयर होंगे तो जो आपने फिजिशियन से बात करते हैं तो आप उनसे भी, हम आपके साथ एक PDF फॉर्म शेयर कर लेंगे, और हमारी एक जो आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर है उस पर भी हम ये चीज़ डाल देंगे, आपके साथ भी हम शेयर कर लेंगे। somebody wants to read it, they can read it and they can use it. अब सिंपल सी एक चीज़ मैं और ऐड लास्ट में करना चाहता था। सिंपल जैसे कुछ चीज़ें जैसे हमारी योगा में जैसे प्राणायाम है, कपालभाति, जिससे हम सांस बेटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें कर लेनी चाहिए। स्टीम गार्गल्स कर लेना चाहिए, गुब्बारे फुलाने वाला जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, ये भी कुछ चीज़ें हम करके थोड़ा लंग फंक्शन हमारा अच्छा रख सकते हैं। बहुत अच्छे। और अगर सपोज कोई बंदा अगर हमें अपना टेस्ट करा के अगर हमें रिपोर्ट भेजता है, सो कैन वी एडवाइज हिम? देन वी विल डेफिनेटली एडवाइज हिम। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आप या हमारे ईमेल पे आप अपनी रिपोर्ट हमें भी भेज सकते हैं। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो हम आपको डॉक्टर साहब से उसका जो भी कौन सी डोज कितनी लेनी है, कौन सी चीज़ डेफिशिएंट है,
वो एनालाइज करके आपको हम प्रिस्क्राइब भी कर से बता भी सकते हैं कि आपको क्या और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। उसके लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी हमें चाहिए होगी कि आपको और कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, और आपका जो अभी जो आपने जो करंट अपना ब्लड टेस्ट कराया है वो साथ में होना चाहिए। आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं और उसमें हम आपको एडवाइस भी दे सकते हैं जो कि फ्री होगी। सो ये सारी चीज़ें आपको अवेयर करने के लिए हैं, और एक मैसेज है कि हम जितना अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखेंगे उतना ही कोविड के अलावा और भी दूसरी बीमारियों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। नमस्कार। नमस्ते।